فلم کا سٹارٹ ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ فلم عام نہیں ہے۔ اسکرین پر لکھا آتا ہے کہ تقریباً 2300 سال پہلے دنیا میں پہلی بار ایک بیماری سامنے آئی تھی، ایک ایسی بیماری جو پانی کو دیکھتے ہی انسان کو پاگل کر دیتی تھی، جس میں دردناک جھٹکے، منہ سے جھاگ اور سب سے خطرناک چیز دماغ پر قابو کر لینا۔ اس بیماری کا نام ہائیڈروفوبیا تھا، یعنی ربز۔ اب کیمرہ ہمیں بندروں کے دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہ وائرس جب چمپینزی میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف بیمار نہیں ہوتا، وہ قاتل بن جاتا ہے۔ اچانک ہم ایک ویٹنری ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو سیٹی بجاتا ہوا ایک چمپینزی کو ویکسین لگانے آیا ہے۔ اس چمپینزی کا نام ہے بین۔ بین دکھنے میں بالکل معصوم لگتا ہے، خاموش، فرما بردار اور آنکھوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگلے ہی لمحے بین غائب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور بین اچانک چھلانگ لگا کر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز، چیر، خون اور چند سیکنڈ میں ڈاکٹر کو بری طرح چیر پھاڑ کر مار ڈالتا ہے۔ اب نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بتاتی ہے کہ چمپینزی اب 300 الفاظ سمجھ اور بول سکتے ہیں، لوگ انہیں گھر میں پالتو جانور بنا رہے ہیں۔ اور پھر فلم 36 گھنٹے پیچھے چلی جاتی ہے، جہاں لوسی چھٹیاں گزارنے کے لیے ہوائی آتی ہے۔ جہاز میں ایک چھوٹا لڑکا اس سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ ایک ٹیڈی بیئر اٹھاتا ہے اور مسکراتا ہے اور معذرت کر لیتا ہے۔ لوسی مسکرا کر بیٹھ جاتی ہے، کون جانتا تھا کہ یہی ٹیڈی بعد میں قیامت بنے گا۔ لوسی اپنی بیسٹ فرینڈ کیٹ کے ساتھ بیٹھتی ہے، وہ اپنی بہن ایرن سے فون پر بات کرتی ہے جو گھر میں ایک چمپینزی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے۔ ایرن یقین دلاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تیاریاں مکمل ہیں۔ لوسی اور کیٹ فیصلہ کرتی ہیں کہ ویکینڈ ساتھ گزاریں گی۔ جہاز میں ایک اور لڑکی ہانا نظر آتی ہے جس کی نظر ڈرو کے دوست فل پر ٹھہر جاتی ہے۔ ادھر ڈرو لوسی کا سامان اٹھانے میں مدد کرتا ہے۔ گھر پہنچ کر لوسی اپنے گونگے باپ ایڈم سے ملتی ہے جو اپنی بیٹی کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتا ہے۔ لوسی کی بہن ایرن پریشان ہوتی ہے مگر لوسی اسے وہی ٹیڈی بیئر دکھاتی ہے۔ اچانک چمپینزی ٹیڈی اٹھا کر بیڈ کے نیچے لے جاتا ہے۔ ایرن ہنس پڑتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ بین بات کر سکتا ہے مگر آواز سے نہیں، وہ ایرن کے ٹیب کے ذریعے بات کرتا ہے جہاں الفاظ لکھے جاتے ہیں اور آواز میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اب ہینا کو بین سے ملایا جاتا ہے، وہ پہلے ڈر جاتی ہے مگر چند لمحوں میں دوستی ہو جاتی ہے۔ رات کو ہینا گھر گھومتی ہے، دیواروں پر لوسی کی پرانی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ تب نک آتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوسی کی ماں ایک پرائمٹولوجسٹ تھی جو بین کو گھر لائی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نک ہینا کو سگریٹ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہینا اکیلی گھر دیکھتی ہوئی سوئمنگ پول تک پہنچ جاتی ہے۔ اچانک بین اس کے بالکل پاس کھڑا ہوتا ہے۔ پانی دیکھتے ہی بین پر ہائیڈروفوبیا کے سمٹم شو ہونے لگتے ہیں، وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے اور گھبرا جاتا ہے، بالکل بے قابو ہو جاتا ہے۔ ہائیڈروفوبیا یعنی شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ ہینا ہاتھ بڑھاتی ہے اور اگلے ہی لمحے بین وحشی بن جاتا ہے، کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ این وقت پر ایڈم سیٹی بجاتا ہے، بین رک جاتا ہے۔ ایڈم بتاتا ہے کہ بین اجنبیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے انہیں ایک نیولا مرا ہوا ملتا ہے جس پر کاٹنے کے نشان ہوتے ہیں۔ ایڈم خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ بین کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ اگلی صبح وہ اپنی بیٹیوں کو بتاتا ہے کہ نیولے کی لاش ٹیسٹ کے لیے بھیجی جائے گی اور ویٹرنری ڈاکٹر کو بین کا معائنہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ فی الحال بین قید میں رہتا ہے۔ جب ایڈم چند دن کے لیے کام پر چلا جاتا ہے تو نوجوان پول کے پاس آرام کرنے لگتے ہیں۔ اسی وقت ڈاکٹر بین کا معائنہ کرنے آتا ہے اور وہی ہولناک سین سامنے آتا ہے جو فلم کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا۔ بین بے رحمی سے ڈاکٹر کو مار دیتا ہے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ کیٹ جو بہتر محسوس کر رہی ہوتی ہے باہر جاتی ہے اور ٹیڈی بیئر دیکھتی ہے۔ اچانک بین وہاں آتا ہے جس کی آنکھیں خوفناک ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ قریب آتا ہے کیٹ بھاگ کر لاؤنج کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور لوسی کو کال کرتی ہے۔ لوسی پہنچتی ہے مگر بین غائب ہو جاتا ہے اور ٹیڈی بیئر پر خون لگا ہوتا ہے۔ چیخوں کی آواز سن کر سب پول کی طرف بھاگتے ہیں جہاں ہینا اور نک پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ بین کو قابو کرنے کی کوشش ناکام رہتی ہے، یہاں تک کہ لوسی اس کی گردن میں رسی ڈال دیتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں تو خاموشی چھا جاتی ہے کیونکہ فون کی گھنٹی بین کے پنجرے سے آ رہی ہوتی ہے۔ ایرن یہ دیکھ کر صدمے میں آ جاتی ہے۔ بین رسی کاٹ کر آزاد ہو جاتا ہے اور اس پر حملہ کر کے زخمی کر دیتا ہے۔ گھبراہٹ پھیل جاتی ہے، سب لوگ پول میں کود جاتے ہیں کیونکہ بین تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ سمندر اور چٹانوں کی وجہ سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ نک بین کو کھائی میں دھکیل دیتا ہے
मगर बेन झूल कर वापस आता है और निक को नीचे फेंक कर मार देता है। निक के मरने के बाद सब सदमे में चले जाते हैं। बेन का रवैया बिल्कुल वाज़ेह हो चुका होता है कि वो मुकम्मल तौर पर रेबिस वायरस के कंट्रोल में आ चुका है। लूसी फौरन सूरत हाल को समझ जाती है और जानती है कि अब कोई भी महफूज नहीं है। वो बहुत एहतियात से पूल के किनारे आगे बढ़ती है और एक लाइफ रिंग पानी में फेंकती है ताकि बाकी लोग खुद को महफूज रख सके। लूसी खुद पूल में नहीं कूदती बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर फोन की तरफ बढ़ती है जो बेन के करीब पड़ा होता है। उसी लम्हे कैट बेन की तवज्जो अपनी तरफ करवाती है जिससे लूसी को मौका मिल जाता है और वो तेजी से फोन उठाती है और फौरन पूल में कूद जाती है। बदकिस्मती से फोन टूट चुका होता है मगर आखिरी कॉल खुद ब खुद फ्लाइट वाले लड़कों ड्रू और फिल से मिल जाती है। वो उसे मजाक समझकर फोन बंद कर देते हैं। इसी दौरान बेन रोशनियों पर झूलते हुए हैना पर हमला करता है और उसके बाल नोच लेता है। खौफ और चीखो पुकार में एरन सवाल करती है और लूसी बिलाखिर तल्ख हकीकत बयान कर देती है कि बेन अब बेन नहीं रहा, वायरस ने उस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ एडम एक इवेंट में मसरूफ होता है। वेटनरी मैरी उसे कॉल करती है मगर वो मसरूफियत की वजह से फोन बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है, नेवला रेबिस का शिकार था। एडम चौंक जाता है और जवाब देता है कि हवाई में रेबिस नहीं होते। वेटनरी कहती है कि वो दोबारा टेस्ट करेंगे। एडम के दिल में खौफ बैठ जाता है और फौरन लूसी को फोन करता है मगर उसका फोन उसके कमरे में होता है इसलिए कोई जवाब नहीं मिलता। घर में लड़कियां ये समझ जाती हैं कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, निक का फोन लाउंज से लाना। लूसी और कैट कांपते हुए पूल से बाहर निकलती हैं और खामोशी से घर के अंदर जाती हैं। अंधेरे में चलते हुए उनका हाथ गलती से टीवी के रिमोट से टकरा जाता है और टीवी ऑन हो जाता है जिससे तेज आवाज गूंजती है। बेन फौरन उसके आवाज की तरफ लपकता है। बचने का कोई रास्ता ना देखकर दोनों लड़कियां अलमारी में छुप जाती हैं। बेन टीवी के पास जाता है जहां कार्टून चल रहा होता है। एक लम्हे के लिए वो पुरसुकून नजर आता है मगर अगले ही लम्हे गुस्से में टीवी तोड़ देता है। खौफ से कांपती हुई कैट पीछे हटती है और चीजें गिर जाती हैं। आवाज सुनकर बेन दोबारा मुतवज्जो होता है। वो अलमारी के दरवाजे पर पूरी ताकत से मुक्के मारता है। दरवाजा हिलने लगता है। लड़कियां कपड़ों के दरमियान सांस रोक के बैठी होती हैं। बेन अलमारी के अंदर घुस आता है और पागलों की तरह तलाश करने लगता है मगर खुशकिस्मती से उन्हें नहीं देख पाता और वापस चला जाता है। हिम्मत जमा करके लूसी सबसे पहले बाहर निकलती है और कैट को इशारा करती है कि वो वहीं छुपी रहे। लूसी फोन उठाकर मदद के लिए कॉल करने लगती है मगर अचानक बेन की टैब से खौफनाक आवाज गूंजती है। लूसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऊपर देखती है तो बेन घात लगाए बैठा होता है। वो भागने की कोशिश करती है मगर बेन छलांग लगाकर जानलेवा हमला करता है। कैट फौरन एक डंडा उठाकर बेन पर वार करती है और लूसी को बचा लेती है। दोनों लड़कियां दौड़कर लाउंज से बाहर निकलती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं मगर बेन दरवाजा खोलना जानता होता है। वो पूरी ताकत से शीशे पर हमला करता है। चंद लम्हों के लिए लगता है कि शीशा नहीं टूटेगा और लड़कियां महफूज हैं मगर लूसी समझ जाती है कि ये झूठी उम्मीद है। बेन पीछे हटता है और पूरी ताकत से टकरा कर शीशा तोड़ देता है। खौफनाक अफरा तफरी में बेन कैट को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे पटक देता है। लूसी पीछे दौड़ती है मगर बचा नहीं पाती। बेन एक भारी पत्थर उठाकर कैट को बेरहमी से मार देता है। कैट की मौत के बाद लूसी जान बचाने के लिए बगैर रुके भागती है और पूल में छलांग लगाने ही वाली होती है कि बेन उस पर झपट पड़ता है। एन उसी लम्हे हैना पूल से बाहर आती है और हिम्मत दिखाते हुए एक रस्सी बेन की गर्दन में डालकर खुद दोबारा पानी में कूद जाती है। लूसी भी उसके साथ रस्सी पकड़ लेती है। दोनों पूरी ताकत से कोशिश करती हैं कि बेन को पूल में घसीट लें क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि चिंपैंजी तैर नहीं सकते लेकिन बेन की ताकत आम जानवर से कहीं ज्यादा हो चुकी होती है। वो चीखते हुए रस्सी तोड़ देता है और दोबारा आजाद हो जाता है। ये उनका आखिरी मौका भी जाया हो जाता है। दोनों लड़कियां बेबस होकर पूल में छुपी रहती हैं। इसी दौरान ड्रू और फिल लूसी की लोकेशन के जरिए उसके घर पहुंच जाते हैं। वो हंसते हुए अंदर इंटर होते हैं ये समझते हुए कि शायद कोई सरप्राइज या मजाक है। वो आपस में बढ़ जाते हैं ताकि लड़कियों को ढूंढ सकें मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि बेन उन्हें देख चुका है। वो बिल्कुल खामोशी से शिकारी की तरह उनका पीछा करता है। ड्रू एक कमरे की लाइट ऑन करता है और तस्वीरी फ्रेम उठाता है। तब उसे एहसास होता है कि इस घर में एक चिंपैंजी रहता है। अचानक बेन आहिस्ता आहिस्ता सामने आता है खौफ पैदा करता हुआ। ड्रू खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और मजाक में कहता है कि तालियां बजाओ। हैरत अंगेज तौर पर बेन तालियां बजा देता है। ड्रू उसे खेल समझकर अपनी चाबियां हिलाता है ताकि बेन की तवज्जो हटाकर भाग सके मगर बेन जरा भी इंप्रेस नहीं होता। अगले ही लम्हे वो वहशियाना अंदाज में झपटता है और ड्रू के चेहरे को पकड़ता है और ताकत से उसका जबड़ा मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर नोच लेता है। बेन उस जबड़े को खिलौना समझकर चंद लम्हे खेलता है और फिर लाश पर रख देता है। अब बेन दूसरे लड़के फिल की तलाश में निकल जाता है। फिल पूल के पास छुपी हुई लड़कियों तक पहुंच जाता है। लूसी होश में आकर उसे इशारा करती है कि खामोश रहे और पुलिस को फोन करे, मगर फिल घबराकर जोर से चीख पड़ता है। चीख सुनकर बेन फौरन आ जाता है। ड्रू का कटा हुआ जबड़ा फिल के पास आ गिरता है। फिल बदहवास होकर भागने की कोशिश करता है, मगर बेन उसे पकड़कर बेदर्दी से मार देता है। इस हंगामे में हाना मौका जानकर पूल से निकलती है और बगैर पीछे देखे भागती है। वो घबराहट में गलत गाड़ी में बैठ जाती है। गलती का एहसास होते ही निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ती है, मगर वहाँ बेन पहले से ही मौजूद होता है। उसके हाथ में हैना की गाड़ी की चाबियां होती हैं। वो पुरसुकून अंदाज में गाड़ी खोलता है। हैना कांपते हुए पुलिस को फोन करती है, मगर खौफ की शिद्दत में अपना एड्रेस बताना भूल जाती है। बेन गाड़ी के डिग्गे से अंदर घुस जाता है और हैना को बेरहमी से मार डालता है। वापस लूसी की तरफ आते हैं। वो पूल से निकलकर घर की तरफ बढ़ती है। जमीन पर टूटे हुए शीशे बिखरे होते हैं और वो एक नोकीले टुकड़े पर पांव रख देती है। शदीद दर्द के बावजूद चीख दबा लेती है, मगर देर हो चुकी होती है। बेन हमला करता है। उसी लम्हे एडम गाड़ी लेकर घर पहुंचता है। गाड़ी की आवाज सुनकर बेन लूसी को छोड़कर एडम की तरफ लपकता है। जख्मी लूसी हिम्मत जमा करके अपने बाप को खबरदार करने के लिए पीछे दौड़ती है। एडम घर में तबाही देखकर कुछ लम्हे साकित रह जाता है, फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर पिज्जा खाने लगता है। वो बहरा होने की वजह से चीखें और शोर नहीं सुन पाता। लूसी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो ऊपर चला जाता है। बेन वापस आकर लूसी पर हमला करता है। एक लम्हे के लिए वो पुरसुकून लगता है। उसका हाथ थाम लेता है जैसे पुराना बेन हो, मगर अगले ही लम्हे उसकी कलाई तोड़ देता है। दर्द में लूसी उसके जख्म पर जोर से हाथ रखती है, जिससे बेन को तकलीफ होती है और वो लम्हा भर पीछे हटता है। लूसी सोफे के नीचे छुप जाती है, मगर बेन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त एरन आ जाती है और बेन की तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है। वो उस पर झपटता है, जिससे लूसी को मौका मिल जाता है और इसी दौरान एडम ड्रू की लाश देख लेता है और घबराकर अपनी बेटियों को तलाश करने लगता है। बेन दोबारा लूसी पर हमला करता है। उसी वक्त एडम सीटी बजाता है, मगर इस बार सीटी का कोई असर नहीं होता। बेन पूरी वहशत से एडम पर टूट पड़ता है। एडम बचाने की कोशिश करता है, मगर ताकत कम पड़ जाती है। लूसी बेलचा उठाकर वार करती है, मगर बेलचा भी टूट जाता है। बेन फिर हमला करता है। तब एडम आखिरी हिम्मत जमा करके बोतल उठाता है और बेन के सर पर मारता है। फिर वह टूटी हुई बोतल उसके सीने में घुसा देता है। चंद लम्हों के लिए सबको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, मगर अचानक बेन दोबारा उठ जाता है और पूरी ताकत से हमला करता है। लूसी आगे बढ़कर अपने बाप और बहन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है, मगर आखिरी ही लम्हे में एडम लूसी का हाथ पकड़ लेता है। बेन शीशे के बड़े टुकड़े से छलनी होकर गिर जाता है और इस बार वाकई वो मर चुका होता है। जल्दी पुलिस वहां पहुंच जाती है। एरन को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है और रेबीज का इलाज शुरू किया जाता है और डॉक्टर तस्दीक करते हैं कि वो बच जाएगी। एडम और लूसी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अचानक लूसी को दोबारा टैब से आवाज सुनाई देती है और वो खौफ से चौंक जाती है, मगर मालूम होता है कि एक पुलिस वाला उसे चला रहा है। यूं ये खौफनाक रात आखिरकार खत्म हो जाती है और ये फिल्म भी यहाँ एंड हो जाती है।